नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन। इससे पहले मैं इसकी कोई स्टेटमेंट देता हूँ, एक आपको मैं कोई प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। आपने मुझे कुछ उसके ऑब्जर्वेशन बताने हैं। इफ यू हैव 1 kg ऑफ वुड, इसे आप बर्न कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली टाइम कितना लगेगा? जो आपकी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन बता दो। 1 kg लकड़ी को जला रहे हैं, हाउ मच टाइम इट विल टेक? यस, हाउ मच टाइम इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली बता दो, कोई सच नहीं चाहिए। चलिए मान लेते हैं 60 minutes। And now if you want to burn 2 kg wood, how much time it will take? Approximately जो आपके experimental observation में बताना है। Okay, it will not take 120। मैथमेटिकली तो 120 आ रहा है ना, मैथमेटिकली 120 हो रहा है, पर प्रैक्टिकली वो 90 मिनट्स ही हो रहा है। चलिए, इफ यू केज 5 kg, चलिए 180 है, 180 मिनट्स, ठीक है। इस 5 kg वुड में तो एक साथ आप बर्न कर रहे हैं, उसमें 1 kg वुड कितने टाइम में बर्न हो रहा है? कितना? इट मीन जब आपने 5 kg वुड एक साथ बर्न किया तो उसमें 1 kg is getting combustion in 36 minutes, but when you're burning independently it is taking 60 minutes। getting me? इट मीन जितना अमाउंट और रिएक्टेंट ज्यादा है उतना स्पीड ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। तो आई कैन से rate of reaction is directly proportional to the reactant। rate of reaction is directly proportional to the reactant। जितना रिएक्टेंट का अमाउंट ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। Am I clear? Gurparas, are you there? सो रहे हो क्या? ठंड बहुत है नहीं, रजाई में बैठे रखते हैं। टेबल चेयर पर आ जाओ अलर्ट होके। So if A is a reactant and converting into product, the rate is directly proportional to the
concentration of reactant A. So removing this proportionality, I'm writing equilibrium constant K into A is equal to rate. When concentration of the A is taken as a 1, rate is equal to K. Rate is equal to K. And this K is called as a rate constant. This K is called as a rate constant. It is also called as a velocity constant. This rate constant is equal to K, but only under a particular concentration. इस concentration पर K rate के equal है. So we also call it is equal to specific rate. It is equal to specific rate. Specific rate, it is equal to rate, but only when the concentration is taken as a 1. Understood? Right. And now if we have two reactants A and B to give product, then rate of reaction is directly proportional to product of A and B. It is equal to some constant K into A into B. So when concentration of the A is equal to concentration of the B is taken as a 1, then rate is taken as a 1. Rate is equal to K. Again, K is the same thing. K is a rate constant, also called as a velocity constant, also called as a specific rate. Am I clear? Note it down. Now, if we have A moles of A reacting with B moles of B to give product, then rate is directly proportional to A to the power A and B to the power B is equal to K, A to the power A and B to the power B. Same thing. If both these concentrations are equal and taken as a 1, then rate is equal to K. Basically same चीज बता रहा हूँ मैं आपको in different form, in one reactant, two reactant, in number of moles different. But one thing is common, that is rate is directly proportional to concentration. So this mathematical equation can be taken as a law of mass action. Write down the statement for the law of mass action.
Rate of reaction is directly proportional to is directly proportional to product of is directly proportional to product of concentration of reactants. Each raised to the power their molar concentration, the molar coefficient. देखो, product of concentration of reactant, each raised to the power their molar coefficient. Okay, am I clear? Right. Now, I have a reaction like this: A moles of A with B moles of B to give C moles of C and D moles of D. Rate of forward process is directly proportional to A to the power A, B to the power B. Rate for the forward process. Forward में reactant है A and B. So it is equal to K into A to the power A and B to the power B. Am I clear? Now rate for the backward process. Rate for the backward process. जब backward पे जाएंगे तो C and D become the reactant. So that will be directly proportional to C to the power C, D to the power D is equal to KB into C to the power C and D to the power D. Am I clear? At equilibrium, rate for the forward process is equal to rate for the backward process. So I can say Kf into A to the power A
b to the power b is equal to kb into c to the power c and d to the power d. Am I clear? ज़्यादा ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? पहले मैंने इंडिपेंडेंट रेट निकाल दिया और अब हमने एट इक्विलिब्रियम इसको इक्वेट कर रहे हैं. Any doubt till now? Okay. So I can say kf upon kb is equal to c to the power c and d to the power d upon a to the power a and b to the power b. This ratio kf upon kb or product upon reactant is called the equilibrium constant Kc. C for concentration, क्योंकि यहाँ पर हम C, D, A, B we are taking it as a concentration. Am I clear? Any doubt till now? गुरपारस सो गए लगते? शानवी सो गए? जाग रहे? अच्छा चलो, बुक्स आपके पास में ABC, प्रदीप, ऐसा कोई भी बुक खोल लो. राइट नाउ खोलो, चैप्टर खोलो, जहां पर मैंने केसी का डेरिवेशन दिया हुआ है सेम टू सेम, वो निकाल लो. जो डेरिवेशन मैंने अभी आपको कराया लॉ ऑफ मास एक्शन, उसको वहां से ओपन करो. गुरपारस मिल गई बुक आपको? ओके. ठीक, इस टॉपिक के बाद में आपको कुछ न्यूमेरिकल दिए हुए, सॉल्व एग्जांपल. कैन यू सी दैट? जिसमें कॉन्सेंट्रेशन दिया जा रहा है आपको. राइट. इट मीन कॉन्सेंट्रेशन दिया जाता है, आपको केसी निकालना है, या केसी दिया जा रहा है और आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालना है ऐसा कोई क्वेश्चंस?
एक क्वेश्चन स्टेटमेंट बताओ मेरे को आप, जो क्वेश्चन में आप बोलोगे रिएक्शन बनानी है या क्या है, वो मेरे को क्वेश्चन की स्टेटमेंट बोलो एक बार, क्योंकि मेरे पास अभी बुक नहीं है अभी। बोलिए, बोले क्वेश्चन स्टेटमेंट बोलो एक बार, पूरा स्टेटमेंट बोलो। देखो वेट वेट वेट, कॉन्सेंट्रेशन, वेट वेट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 आगे। देखो, जैसे कॉन्सेंट्रेशन बोलते हो आपने ये चीज दिखानी है आपने, ठीक है, बस स्क्वायर ब्रैकेट में, जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद इन दोनों की कुछ वैल्यूज दी होंगी, इन तीनों की दी है वैल्यू ना, बोल दो N2 की वैल्यू बोलो। हम्म मोल पर लीटर होगा, ठीक है चलो मोल। कैपिटल एम दिया होगा फिर कैपिटल एम दिया होगा ना, कैपिटल एम का मतलब ही मोलैरिटी होता है ना, उसका मतलब वही मोल्स पर लीटर होता है। O2 का वैल्यू कितना दिया है? -3। मोलर या मोल पर लीटर। आगे। मोलर, राइट। ओके, इसके बाद आपको रिएक्शन दिया होगा, हाँ? बोलो रिएक्शन। हम्म 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 इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम, ये वाला सही लगा होगा। हम्म, ठीक है, आपको रिएक्शन दिया जाएगा, आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए रिएक्शन दिया जाएगा। एंड फिर क्या पूछा हुआ है नेक्स्ट, कैलकुलेट केसी, कैलकुलेट केसी। तो अब आप इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का पहले एक्सप्रेशन लिख लो, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट यानी कि NO⁴ अपॉन N2 इंटू O2, राइट। मैंने आपको डेरिवेशन कराया था प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करके, टू दी पावर देयर मोलर कोफिशिएंट। बस इसके बाद आपका वैल्यू ही दिया हुआ है, 3 × 10⁻³ टू दी पावर 2 अपॉन, नहीं ऊपर ये 4.8 है, 4.8, ठीक है। और N2 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 3 × 10⁻³ O2 का वैल्यू दिया हुआ 4.2 × 10⁻³। इसके बाद तो कैलकुलेट करना है आपको, कर सकते हो ना। गुरपारस, राइट, बुक है आपके पास में भी। ओके, देखो जो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो, प्रबल आप भी देखो बुक। ओके, चलो मेरे को एक स्टेटमेंट बताओ जिसमें टेम्परेचर प्रेशर भी दिया हुआ है, बोलो। ओके, फाइंड केपी, वेट वेट वेट, फाइंड केपी। मैंने अभी वो केपी पढ़ाया नहीं है आपको, अभी आपको केपी में पढ़ाने वाला हूँ, राइट नाउ। मैंने आपको केसी कराया अभी, राइट। चलिए, मैं अब आपको केपी के बारे में डिस्कस करता हूँ। राइट डाउन, A moles of A react with B moles of B in equilibrium with C moles of C and D moles of D, राइट। इस रिएक्शन का जब हम Kc लिख रहे हैं, C फॉर कॉन्सेंट्रेशन, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ईच रेज टू द पावर देयर मोलर कोफिशिएंट। जब हम स्क्वायर ब्रैकेट में दिखा रहे हैं ए बी सी डी को, दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन, राइट। And now we write it in terms of the Kp. P for pressure, P for pressure. It means अगर आपके पास में ये A, B, C, D ये सब गैसियस हैं, कॉन्सेंट्रेशन नहीं मेजरमेंट कर सकते या कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में वैल्यू नहीं देते हम इनका पार्शियल प्रेशर मेजरमेंट कर सकते हैं। क्या मेजरमेंट कर रहे हैं, देयर पार्शियल प्रेशर।
देन द Kp मीन्स उसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम P में टर्म करेंगे प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट्स, pressure of C to the power coefficient C, pressure of D to the power coefficient D, pressure of A to the power A, pressure of B to the power B. Am I clear? राइट तो ऐसे केस में हमें यहाँ पर Kp के टर्म पे कैलकुलेट कर सकते हैं, नोट कर लो इसको। यस, डन, नोटेड डाउन। चलें आगे। ओके, नाउ राइट डाउन relationship between Kp and Kc. Next topic, write down relationship between Kp and so how to derive? आपको Kp का वैल्यू मालूम है, Kc का वैल्यू मालूम है अभी, राइट? I can take this equation as equation number 1 and this is equation number 2. Now, from ideal gas equation,
Gurparas, what is ideal gas equation? Good. PV is equal to nRT. So I can say P is equal to nRT upon V. अभी जो इक्वेशन हमारे पास में दिया हुआ है Kp का वैल्यू, उसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी सी डी है, तो मैं इसको पी ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इंटू आर टी अपॉन वी कह सकता हूँ. So PB is equal to NBRT upon V. PC is equal to NCRT upon V. PD is equal to NDRT upon V. And for all these gases, I am taking V as a constant and T as a constant. Because ABCD तीनों गैसेस के लिए वॉल्यूम एक ही कंटेनर के अंदर है. All the gases are same container. So volume is constant and temperature is also constant. Take it as equation number 3. Hello. Hello. Can you hear me? Everyone? Right. तो जो ये जो के पी पी ए पी बी पी सी का वैल्यू आया है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 में इंसर्ट कर देंगे. यहाँ पर पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी इन इक्वेशन नंबर 2. सी नाउ के पी इज इक्वल टू, it is a n c r t upon v to the power c, right? N d r t upon v to the power d upon n a r t upon v to the power a, n b r t upon v to the power b. Am I clear? Am I clear till now? Right. So I'm not doing one thing. Nc upon v to the power c, nd upon v to the power d, rt to the power a plus b. Can I say it like this? rt कॉमन कर लिया. Similarly in the denominator,
It is C plus D, sorry. C plus D. It's A plus B. Done? Note it down? Understood? Yeah, सो रहे हो आप लोग? Yes, note it down? Yes or no? राइट। अब आप मुझे बताओ कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जो मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ, ये वाला, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है बताइए? एन फॉर नंबर ऑफ मोल्स ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी अपॉन वॉल्यूम क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट करता है नहीं करता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ द मोलैरिटी। तो दैट Kp इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सी, स्क्वायर ब्रैकेट में दिखा रहा हूं मैं, टू द पावर सी, concentration of D to the power D upon concentration of A to the power A, concentration of B to the power B into RT to the power, कितना आ गया? C plus D minus A plus B, right? So Kp is equal to, what is this now? What is this now? ये मैंने सर्कल किया, what is this? Can I say it is equal to Kc value? So RT to the power, this is the change in number of moles, means product minus reactant. So Kp is equal to Kc into RT to the power delta N. This is the relationship between Kp and Kc. तो कुछ क्वेश्चन आपको दिए होंगे जिसमें Kc वैल्यू दिया हुआ है, Kp कैलकुलेट कर दो, या रिवर्स Kp दिया हुआ है, Kc कैलकुलेट कर दो, कि वी कैन डू दैट। ओके, अब अपने बुक खोलो, देखो जरा ऐसे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखो जरा, कर सकते हो?
देखो कर सकते हो नहीं कर सकते? राइट। हो रहे हैं क्वेश्चन वहां से केपीकेसी पे बेस्ड? एक कोई भी क्वेश्चन बोलो जरा जिस पर प्रबल आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे जहां पर टेम्परेचर प्रेशर दिया हुआ है, बोलिए जरा क्वेश्चन। हो गया क्वेश्चन। केपी इज गिवन, केसी टू बी कैलकुलेटेड। और जो इक्वेशन क्या दिया जा रहा है आपको, N2 प्लस, बोलो। ओके, तो यहां से जो डेल्टा एन कैलकुलेट करना है आपने, राइट। आपको टेम्परेचर दे दिया, टेम्परेचर जो है केल्विन स्केल में यूज करना है ऑलवेज। आर का वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू मालूम है, और जो डेल्टा एन कैलकुलेट करना है दैट इज इक्वल टू एन पी माइनस एन आर, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। So 2 mole minus 1 mole, that is equal to 1. So delta N is equal to 1. Am I clear? So delta N is equal to 1. So delta N is equal to 1. Kp value already given. Kc can be calculated. Yes or no? तो अब आपके पास बुक में ऐसे काफी क्वेश्चन दिए हुए हैं सॉल्व, इसके बाद अनसॉल्व भी दिए हुए, चेक करो। आई थिंक इस टॉपिक के बाद अनसॉल्व क्वेश्चन भी दिए होंगे आपको। अनसॉल्व था। तो ये क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस कर लो आज का दिन, इसके बाद हम कल क्लास स्टार्ट कंटिन्यू करेंगे, राइट। कुछ पूछना तो अभी पूछो। हाँ बोलिए। A plus A moles of A to give B moles of B, ऐसा है? पूरा क्वेश्चन का स्टेटमेंट बताओ, फिर मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा। एक मिनट, K इज इक्वल टू 49, आगे? चलिए, मोल्स पर लीटर। डीएम मीन डीएम मीन्स लीटर। चलो नेक्स्ट। हम्म इनका फिजिकल स्टेट दिया हुआ है एबीसीडी का। गुड, हो गया फिर तो। जो आपको डेल्टा एन जी निकालना है, डेल्टा एन निकालना है, वो है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, लेकिन ओनली गैसियस। तो प्रोडक्ट में है ओनली 1 मोल, इस सॉलिड को 2 मोल। ये भी गैस है, ये भी गैस है, लेकिन रिएक्टेंट साइड में ये सॉलिड है, इसको काउंट नहीं करेंगे। -1 मोल ओनली। सो 2 - 1 1 आ गया। सॉलिड के नंबर ऑफ मोल काउंट नहीं करने होते, इट्स ओनली फॉर दी गैसेस ओनली। ऐसा किया हुआ, सॉल्व किया हुआ है। ये अनसॉल्व क्वेश्चन है, अनसॉल्व है। तो डेल्टा एन आपको ऐसे कैलकुलेट करना है, राइट, ओनली फॉर द सॉलिड, नॉट फॉर द गैसेस, राइट। गुरपारस, कोई डाउट? सानवी, राइट। कर लेंगे कल तक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल आने हैं। एक चैप्टर आपका मैंने आपको थर्मोडायनामिक्स करा दिया ना, मैंने लास्ट चैप्टर। गुरपारस, सानवी और प्रबल ने ज्वाइन नहीं किया क्लास इतने दिन तक। हाँ, तो उसमें सारे न्यूमेरिकल ही थे।
राइट। तो पेपर में न्यूमेरिकल आने ही इस चैप्टर से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। चलिए आज इतना ही करते हैं, कल सेम टाइम पे कंटिन्यू करेंगे, राइट। ओके।